Assalamu alaikum, dear students. Students, can you hear me? Walaikum assalam. Yes, ma'am. How are you all? Yes, ma'am. Alhamdulillah, ma'am. How about you? Alhamdulillah, I'm fine too. Okay, class, have you listened the previous recordings or go through the lectures or content? Ji, ma'am. Okay, is there any confusion or any point you will not understand it properly? Please ask. Okay, ma'am. Ma'am, there were few terms in the etiology of dementia that I didn't understand. First was the vascular lacunar state, and as well as there was, I guess, strategic infarct dementia. So, what are they? Okay. We have learned about stroke. They have two types. There are two types of stroke. One is ischemic and one is hemorrhagic, right? In ischemic, there is some clot or due to decreased blood supply, the specific part of the brain becomes damaged due to ischemia. Or in hemorrhagic stroke, there will be a rupture of blood vessel. That's why we called it hemorrhagic stroke. There are some other few types of stroke which include lacunar stroke. Lacunar stroke is a type of ischemic stroke, not transient ischemic attack, but a cerebral vascular accident जो ischemic type और transient ischemic attack इन दोनों की सेंटर लाइन में लाई कर रहा होता है. इसमें क्या होता है कि जो हमारा थैलेमस होता है उसके अराउंड कुछ इस्केमिक क्लॉट्स और पार्ट्स बन जाते हैं जिसकी वजह से ये स्ट्रोक हमें होता है. और इस स्ट्रोक में क्या है, इस टाइप में ये रेपिटेटिव होता है, मींस इसकी रिकरेंस बहुत ज्यादा होती है. मे बी आपको मॉर्निंग में और समटाइम्स इसके कोई भी इफेक्ट्स नहीं आते. पेशेंट नॉर्मल होता है, हाई बीपी की वजह से कोई स्पेसिफिक पार्ट अराउंड थैलेमस डैमेज हो जाता है, तो हम उसे कहते हैं जब बहुत सीवियर अटैक होता है, रेपिटेटिव पेशेंट को होता फिर उसकी जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो ज्यादा हो जाती है, तो फिर हमें पता लगता है कि ये लेकुनर स्ट्रोक था. अब क्या है, क्योंकि ब्रेन का स्पेसिफिक पार्ट डैमेज हो जाता है, इसमें क्या है कि जब पेशेंट अब उस जो स्ट्रोक हुआ है, जो डैमेज हुआ है, उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की वजह से पेशेंट समटाइम्स उसकी मेमोरी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है. लेकुनर स्ट्रोक का पेशेंट मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, उनकी मेमोरी जब उनको रेपिटेटिव ये स्ट्रोक होते रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी मेमोरी भी लॉस होने लग जाती है. दैट्स वाई उसमें एक जो टाइप है डिमेंशिया में, एग्जाम्पल के कॉज में, वो एक लेकुनर स्ट्रोक टाइप है. बाकी स्ट्रेटेजिक इस्केमिक स्ट्रोक के वो स्पेसिफिक पार्ट में जिसमें जो हमारे कॉग्निटिव स्किल्स को कंट्रोल कर रहा होता है, अगर उसमें इस्केमिया का अटैक हो जाए तो उसको हम स्ट्रेटेजिक इस्केमिक स्ट्रोक कह रहे हैं, डिमेंशिया कह रहे हैं, कि वो स्पेसिफिकली डिमेंशिया कोज करेगा. क्लियर? जी, मैम. समझ आ गया. Okay. Any other question, class? No, ma'am. Okay. So now I will ask you about dementia and delirium. Ask what is CAM? Ma'am, it is confusion assessment method that is used for diagnosing delirium. Okay, very good. Falak,
आप हमारे साथ हैं? फलकनाज, अब्दुल हसीब, Yes, ma'am. Hasib, please tell us about the criteria of confused assessment method for delirium. Ma'am, in this method, there are 4 criteria through which we can diagnose whether person is suffering from delirium or not. Okay. First one is acute onset and fluctuating course, inattention. Third one is disorganized thinking, and fourth one is altered level of consciousness. The first two must be positive for the delirium diagnosis, and 3 or 4 might be present or Very not. good. Very good. Okay. Okay. Mariam Suhail. Mariam. मरियम, आपको आवाज आ रही है? आमना, आमना खान, Ma'am. आमना, please tell us about the clinical features of delirium. मैम क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं उसमें हमारे पास एक सेकंड मैम Take your time. मैम हमारे पास जो पर्सन होता है उनकी जो अटेंशन होती है दैट इज इम्पेयर्ड और उनकी मतलब जैसे हमारे कंफ्यूजन वाला मेथड है उसके साथ साथ हमारी अटेंशन के साथ कंफ्यूजन भी उनको होती है Okay. ट्रेमर्स होते हैं उसके साथ स्लीप साइकिल उनका ख़राब होता है और जो उनका क्या कहते हैं कॉन्शियस उनकी ऑल्टर्ड होती है और साइकोमोटर एक्टिविटी भी बहुत वेरी करती है Very good. Okay. Muhammad Ahmad. Muhammad Ahmad, can you listen to us? Mariam. मरियम, आपको आवाज आ रही है? I think she is also not with us. Umar Farooq. Yes, ma'am. Umar, please describe the onset of delirium and how can we assess the delirium in patient? Either we can detect it on early stage or later stage, or either we have difficulty in detecting delirium.
जी उमर। उमर हम वेट कर रहे हैं। मैम लेटर स्टेज में डिटेक्ट होता है ये। मैम लेटर स्टेज में डिटेक्ट होता है ये डिलीरियम। और इसका ऑनसेट कैसा होता है? और ये काज होता है ड्यू टू सीवियर इलनेस एंड एनी अदर मेंटल हेल्थ इशू। ये तो कॉजेज है ना, ऑनसेट कैसे होता है इसका? और फिर इसका ड्यूरेशन कितना रहता है? मैम सीवियर होता है। मैं उसकी इंटेंसिटी नहीं पूछ रही, मैं उसका ऑनसेट और ड्यूरेशन पूछ रही हूँ कि आफ्टर ऑनसेट वो कितने ड्यूरेशन के लिए परसिस्ट करता है। आपने रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं सुना? उमर सुना है मैम। तो आपको क्वेश्चन का आंसर ही नहीं पता चल रहा? इसका ड्यूरेशन का आइडिया नहीं है। यस मैम। मैम साउंड क्लियर नहीं आ रही नेट इशू की वजह से। क्वेश्चन रिपीट कर दे। मेरे तक आपकी साउंड क्लियर आ रही है। मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन कि व्हाट इज द ऑनसेट एंड ड्यूरेशन ऑफ डिलेरियम? मैम आंसर में आएगा कि सीवियर इलनेस एंड any injury to brain These are the and it causative starts factors for within. targeted population in which the delirium occur. I am asking about the onset and duration of persistence. नो आइडिया मैम, इसका नहीं पता मुझे। नेक्स्ट टाइम आप देख कर आइएगा। अक्सा अमजद। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम इसका अस्सलाम। जो ऑनसेट है ना वो फ्यू आवर्स टू डेज है वेरी गुड। और ये परसिस्टेंट है, ठीक है। वेरी और गुड। मतलब और डिपेंड करता है कंडीशन पे। अगर फ्यू आवर्स मतलब अगर कंडीशन स्वेयर है तो ये आवर्स में ऑनसेट मतलब 1 to 2 आवर्स हो जाएगा, लेकिन बेसिकली इसका ऑनसेट पीरियड जो है ना फ्यू आवर्स टू डेज है। वेरी गुड। डिलेरियम, डिमेंशिया एंड डिप्रेशन, ये 3 Ds हैं साइकोलॉजिकल कंडीशंस के, जो हमारी ओल्डर पॉपुलेशन में मोस्ट कॉमन देखी जाती है। और जितनी कॉमनली ये प्रेजेंट होती है उतनी ज़्यादा इसको इग्नोर किया जाता है। सही हो गया। ठीक है। अब हमारे पास डिमेंशिया है कि उसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस आ जाता है, उसकी वजह से पेशेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वो स्टेजेस वाइज चल रहा होता है। अगर वो डिमेंशिया जो है वो ज्यादा देर प्रोलॉन्ग करता है तो फिर वो अल्जाइमर में चेंज हो जाता है। क्लियर? बिल्कुल मींस ऐसे ही रियल है। स्टेज ऑफ डिमेंशिया इज अल्जाइमर एंड डिलेरियम इज द ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस। पेशेंट की मेमोरी को कोई इशू नहीं होता, बस वो डिसओरिएंटेट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। उसे नहीं पता होता कि वो इस टाइम कहाँ है। मीन्स उसे वो चीजें भूलता नहीं है, बस कंफ्यूज हो जाता है कि वो आंसर नहीं दे पा रहा होता आपके क्वेश्चंस का। और ये जरूरी नहीं है कि ये स्पेसिफिकली पेशेंट में जब डिलेरियम हो
तो वो उसी में लाया करे। ये कुछ घंटों के लिए भी हो सकता है, कुछ दिनों के लिए भी हो सकता है, कुछ महीनों के लिए भी हो सकता है। इसकी जो मेजर कॉज है वो टर्मिनली इल पेशेंट जो होते हैं उनमें ये चीज देखी जाती है। फॉर एग्जांपल कोई आईसीयू एडमिटेड पेशेंट है, वो जो भी उसके अटेंडेंट है वो मॉर्निंग में उसके पास जाते हैं, वो नॉर्मल है, लेकिन इवनिंग में जाते हैं वो अजीब सी बातें करता है। कहते हैं ना अक्सर के फैमिली में कोई बहुत ज्यादा टर्मिनली इल पेशेंट हो तो कहते हैं बहकी बहकी बातें कर रहा है, दैट इज डिलेरियम। ओके, और डिलेरियम के असेसमेंट में सबसे ज्यादा रोल फैमिली अटेंडेंट्स का होता है। क्यों फैमिली अटेंडेंट्स का रोल होता है? हुदा, कैन यू टेल अस? हुदा, आरिफ? Ma'am, can you repeat the question? आई एम आस्किंग अबाउट कि हमारे जो अटेंडेंट्स होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनका डिलेरियम में कैसे इंपॉर्टेंट रोल होता है? क्योंकि वो जब केयर नहीं करते उनकी जिस तरह करनी चाहिए। मैं असेसमेंट में पूछ रही हूँ कि अटेंडेंट्स हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं इन असेसमेंट। जी हुदा। हुदा, वी हैव लिमिटेड टाइम। एट 9:30 आपका क्विज लॉन्च हो जाना है। Ma'am, I am not sure about the answer. क्लास सबसे ज्यादा ऑनलाइन टीचिंग सिस्टम में आपकी क्लास की तरफ से पुअर रिस्पॉन्स आ रहा है। आप लोगों ने फाइनल पेपर्स नहीं देने? सिमाब, आरिफ? सिमाब? I think Simab is not with us. Muhammad Hamza? मैम जी आमना? मैम ये डिलीरियम में इसलिए जो हमारे एग्जामिनेशन में ज़रूरी होते हैं उनके अटेंडेंस, क्योंकि इसमें पेशेंट्स हलूसिनेट भी करते हैं और उनके साथ और भी प्रॉब्लम, क्योंकि उनकी मेंटल डेरी रिड्यूस्ड होती है, तो दे कैन टेल यू समथिंग दैट इज एक्चुअली नॉट हैपनिंग और कैन नॉट टेल यू समथिंग दैट इज एक्चुअली हैपनिंग। मैम ओके। जी हमजा? मैम बेसिकली ये जो डिजीज़ है हमारे पास कैरेक्टराइज की जाती है कि डिस्टर्बेंस इन मेंटल स्टेट। तो जो पेशेंट होते हैं मैम उनको रिजल्टलेसनेस की भी प्रॉब्लम होती है, ड्यू टू द फीवर भी हो जाता है। इस वजह से वो क्योर नहीं कर पाते, उनका जो मेंटल डिस्टर्बेंस है वो डिस्टर्ब रहता है। और मैम हमारे पास जो फैमिली मेंबर्स हैं ऑब्वियसली वही हमें एक्यूरेट और ट्रू इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि हम सही से डायग्नोज कर पाए और सही से ट्रीट कर पाए। वेरी गुड। इसमें यही बातें हैं, इसको इस तरह से लेते हैं कि अगर आपने रिकॉर्डिंग सुनी होती तो उसमें मैंने मेंशन किया था कि अटेंडेंस का इसलिए हमारे पास इम्पोर्टेंट रोल होता है कि हम डिलेरियम को इतना इजीली डायग्नोज नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो पेशेंट हमारे पास इस चीज़ से प्रेजेंट नहीं करता, दूसरी बात कि हम पेशेंट के साथ हमारा ज़्यादा
इंटरेक्शन नहीं हुआ होता जिसकी वजह से हमें उसके बिहेवियर का पता हो। इसमें क्योंकि मेंटल स्टेटस चेंज हो रहा होता है तो हम तब तक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि मेंटल स्टेटस में क्या चेंज आया जब तक हमें उसका बेस लाइन ना पता हो। अगर पेशेंट फॉर एग्जाम्पल पहले से ही डिसोरिएंटेट है विथ प्लेस टाइम एंड पर्सन ड्यू टू सम मेंटल रिटार्डेशन इशू, हम कैसे असेस कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं डिलेरियम जब तक हमें अटेंडेंट ही नहीं बताएंगे। और मे बी पेशेंट पहले नॉर्मल था, अब क्या हुआ है कि मीन्स उसका मेंटल स्टेटस में कुछ इशू नहीं था, लेकिन हॉस्पिटल स्टे की वजह से वो कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, उसने क्या कहते हैं डिसोरिएंटेट हो गया, अजीब सी बातें कर रहा है, मॉर्निंग में ठीक होता है इवनिंग में ऐसी बातें कर रहा है। जो भी अटेंडेंट उसके साथ होगा वो डॉक्टर को ये चीज रिपोर्ट करेगा। तो इस वजह से अब वो अटेंडेंट क्यों रिपोर्ट कर सक रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ये पहले ऐसी बात नहीं करते थे, राइट? उसे पता है कि पहले बेसलाइन मेंटल स्टेटस क्या है, अब वो चेंजेस आ रहे हैं, तो वो चेंजेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि डिलेरियम सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटल स्टे की वजह से नहीं, कोई भी ऐसी डिजीज है, आप कोई मेडिसिन ऐसी ले रहे हो या मोर देन वन मेडिसिन ले रहे हो जिसको हम पॉलीफार्मेसी कहते हैं, जिसमें क्राइटेरिया ये है आइदर 4 और 6, मोर देन 4 और मोर देन 6 मेडिसिन जब लें तो हम उस एल्डरली पेशेंट को पॉलीफार्मेसी कह देते हैं। और इस पॉलीफार्मेसी का हमारी डिफरेंट सिस्टम्स पे बहुत सीवियर इफेक्ट आ रहा होता है, हमारे बैलेंस पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, हमारी सेंसरी सिस्टम पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, उसी तरह हमारे ब्रेन पे भी इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस वजह से अटेंडेंट्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डायग्नोसिस, क्योंकि उनको प्रीवियस मेंटल स्टेटस का पता होता है और जो भी चेंज आता है वो उसको आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प आउट करते हैं। और उसके साथ साथ अगर पेशेंट इस तरह इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, वो उसे नहीं चीजें समझ आ रही, तो अगर उनकी कोई प्रीवियस मेडिसिन में कोई चेंज आया है, कोई मेडिसिन की डोज में चेंज आया है, या मेडिसिन को विड्रॉल करवाया, कोई बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए एक मेडिसिन ले रहे थे उसको विड्रॉ करवाया या फिर बूस्ट में चेंज कराया, तो तब भी हमें डिलेरियम आ सकता है। इसलिए हमें डिलेरियम के लिए कंप्लीट हिस्ट्री लेनी पड़ती है मेडिसिन की, कि पहले क्या मेडिसिन ले रहे थे, डोज क्या ले रहे थे, कितनी देर से ले रहे थे, ताकि अगर कोई अफेक्ट वो मेडिसिन का हैबिट डेवलप हो गई है तो मे बी उसके विड्रॉल की वजह से वो चीजें आ रही हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके क्लास, डिमेंशिया में तो कोई इशू नहीं है? No, ma'am. ओके क्लास, अब आपका क्विज लॉन्च हो रहा है, आई थिंक हो गया होगा, 1 to 2 मिनट्स में हो जाएगा। डिलेरियम का सेपरेट क्विज है और डिमेंशिया का सेपरेट क्विज है, दोनों 10-10 मिनट्स के हैं। अभी आपका एक क्विज लॉन्च हो जाएगा, आफ्टर 10 मिनट सेकंड क्विज लॉन्च हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक, एंड नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा रिस्पॉन्स रहा तो आप में से किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। आज की अटेंडेंस की मैं पिक्चर ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, बाकी नेक्स्ट टाइम से हम किसी बच्चे की अटेंडेंस मार्क नहीं होगी अगर किसी बच्चे ने रिस्पॉन्स ना दिया। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay class, if there is no question then Allah Hafiz, attempt your quiz, and inshallah next week we will meet on our interactive session. And next time kindly listen or watch the recorded lecture prior to the interactive session. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.